Hello students, today we are here with the detailed summary of your lesson, The Beggar. In this lesson you will find two main characters, Sergei and Beggar. Beggar who is Laskov, and one maid named Olga. And this lesson tells us that how a criminal or how an antisocial element can be changed by your good behavior. You will find Sergei, who was an advocate. One day he came across a beggar. The beggar had dull, drunken eyes and a red spot on his cheeks. He said that he had eaten nothing for 3 days. He had no money for a lodging even. He said that he had been a village school teacher for 8 years. He had lost his place due to an intrigue. He had nothing to do for about a year. The advocate felt that he had seen the beggar somewhere else. His eyes fell on beggar's pair of shoes. One shoe was different from other. He suddenly remembered where he had seen him. He told the beggar that he had seen him in Sodwa Street. On that day, beggar had said that he was a student who had been expelled. The beggar was taken back. He was surprised. He was faltering. He denied having met the advocate earlier. Sergei was angry and threatened to call the police. At this, the beggar then admitted that he had met him on both occasions, means this time and last time also. Formerly, he used to sing in a Russian choir. He was sent away for drunkenness, means drinking habits. He asked Sergei what else he could do. Sergei replied that he must work. The beggar asked where he could find the work. Sergei offered him the work of chopping wood for him. The beggar could not deny. Sergei took him to his house. He called his cook Olga and asked her to take the man into the wood shed to chop wood. Olga did as she was told. Sergei could see the wood shed and the yard from the window of his dining room. He saw Olga scolding the beggar for not working properly. He began to feel sorry for the beggar, means Sergei started to feel sorry for the beggar. When all the wood had been chopped, Sergei asked Olga to give beggar half a ruble. He said that beggar could come on the first day of each month and he would work for him. The beggar did come on the first day of the next month also and again earned half a ruble. From that day, he often appeared in the yard and got some work in the house of Sergei. When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling the furniture. The beggar's name was Laskov. Sergei gave a letter to Laskov recommending him to his friend for the job of making copies. Laskov took the letter and went away. 2 years passed. One evening, Sergei was paying for his seat at the ticket window of a theater. He noticed a little man beside him, wearing a coat and a cap. The man also asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid copper coins for it. Sergei recognized him. He saw that he was Laskov. Laskov said that he had become a notary, means advocate, and was paid 35 rubles a month. Sergei was delighted and thanked Laskov for listening to his advice and taking the right path. Laskov was grateful to him, but he said that the cook Olga had really changed him. How? Because she helped him when it was the matter of chopping the wood. He said, means Laskov said that he was very impressed by the lady and he wanted to change now.
एंड दैट इज वाई नाउ ही वॉज चेंज्ड। तो बच्चों, आपने देखा इस लेसन में एक एडवोकेट सरगई है। सरगई एक दिन जा रहा होता है, उसको रास्ते में एक भिखारी मिलता है। भिखारी उससे भीख मांगता है। भिखारी ये कहता है कि मैं कभी एक टीचर हुआ करता था। लेकिन लस्कोव जो भिखारी है उसको देख करके सरगई को लगा कि उसने इसको पहले भी कहीं देखा है। उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। इस पर उसने कहा, भिखारी ने कहा, नहीं, मैं आपसे पहली बार मिला हूं। लेकिन जब सरगई ने पुलिस बुलाने की धमकी दी तो भिखारी मान गया कि हाँ, वो उससे पहले भी मिला है। उस समय उसने एक विद्यार्थी होने का बात कही थी कि ये कहा था कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे स्कूल से निकाला गया है। और आज वो कह रहा है कि मैं एक टीचर हूँ और जिसने 8 साल टीचिंग का काम किया है, लेकिन अब उसे किसी षड्यंत्र के तहत स्कूल से निकाल दिया गया है। इस पर सरगई ने कहा, तुम काम क्यों नहीं करते? जो भिखारी बोला, मुझे काम कौन देगा? सरगई ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं तुम्हें काम दूंगा। तो अब भिखारी मना नहीं कर सका और वो सरगई के साथ घर चला गया। सरगई ने अपनी जो कुक है, रसोइयन ओल्गा, उसको बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति से अपने घर की जो लकड़ियां हैं उसको कटवाने का काम करो। तो खुद वो जाकर के डाइनिंग रूम में बैठ गया और देखने लगा। सरगई ने देखा कि जो ओल्गा है वो उस व्यक्ति को डांट रही है। क्यों? क्योंकि वो भिखारी सही काम नहीं कर रहा है। एनीहाउ, उसने करते करते सारी लकड़ियां काट दी और सरगई ने ओल्गा के माध्यम से आधा रूबल उसको पेमेंट के रूप में भी दिया और ये कहा कि तुम हर महीने की पहली तारीख को आकर के लकड़ियां काट करके पैसे ले जा सकते हो। भिखारी ने ऐसा ही किया। भिखारी हर महीने की पहली तारीख को आ जाता और लकड़ियां काट जाता। इसके बदले में उसको आधा रूबल मिल जाता। फिर एक दिन इस एडवोकेट सरगई को अपना घर चेंज करना था और दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए भी उसने इस भिखारी को बुलाया और बोला कि तुम मेरे घर का सामान पैक करने में और लोड अनलोड करने में मदद करो। भिखारी ने बड़े मन से काम किया। इससे सरगई उससे प्रभावित हो गया और सरगई ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त के नाम, जिसको कि एक कॉपी यानी कि जो देख करके नोट्स बनाता है, तो उसके लिए एक खाली पोस्ट थी। तो उसने भिखारी को कहा कि तुम मेरे इस दोस्त के पास जाओ, वो तुम्हें काम दे देगा। भिखारी वहां गया और उसको वहां कॉपी करने का काम मिल गया। एक दिन सरगई थिएटर में, सिनेमा घर में कह लीजिए, वो टिकट लेने के लिए लाइन में लगा था। उसने देखा उसके पास में ही एक और व्यक्ति टिकट के लिए मांग कर रहा है। सरगई ने उसको पहचाना, जो कोट पहने हुए था, हैट पहने हुए था। उसने देखा, अरे ये तो लस्कोफ है। उसने पूछा, भाई तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? इस पर लस्कोफ ने कहा कि मैं अब एक नोटरी बन गया हूं, यानी कि जो वकालत का काम भी कर लेता है, और मुझे 35 रूबल एक महीने के मिल जाते हैं और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। सरगई ने सोचा कि उसकी वजह से वो व्यक्ति चेंज हो गया, बदल गया और वो खुश था। सरगई खुश था। लेकिन इस पर लस्कोफ ने कहा कि आपका तो मैं ऋणी हूं ही हूं, लेकिन मैं आपसे भी ज्यादा जो वो कुक ओल्गा थी उसका बड़ा ऋणी हूं। उसने पूछा, कैसे? उसने कहा, जब मुझसे लकड़ियां नहीं कटती थी तो ओल्गा मेरे लिए बल्कि ये काम कर देती थी। मैंने देखा कि ये लेडी कितनी अच्छी है और उसने मुझे जब ये कहा कि तुम्हें बदलना चाहिए तो मेरा भी मन किया कि वो औरत जो इतनी अच्छी है और वो मुझे बदलने के लिए कह रही है तो मैं क्यों ना बदल जाऊं। इस कारण मैंने सारे बुरे काम या भीख मांगने का काम बंद कर दिया और मन से मैं ये काम करने लगा और उसी औरत की वजह से आज मैं अपने आप को एक बदला हुआ इंसान मानता हूं और इसके लिए मैं अपने दिल से उस औरत ओल्गा का धन्यवाद करता हूं। तो देखा बच्चों आपने ये कि जब हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा सोचता है और वो अगर थोड़ा बहुत गलत काम भी करता है वो भी बदल जाता है।
इसलिए किसी व्यक्ति को बदलने का तरीका केवल सजा नहीं है, बल्कि उसकी सहायता करना भी है। हमें हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। अब आप इस लेसन को पढ़ें।